آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک گئی۔ ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا، بہت چل رہی ہے۔ مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے۔ رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے۔ ہاں، تو وہ ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت ہے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ڈرو اللہ سے۔ امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے۔ جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں۔ اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں، غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے، ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا، حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا۔ نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا۔ 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے، حضرت یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے، لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا۔ وہ کہے حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا، اپنی کی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنے کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا،
मौला तू नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, मैं अपनी अमाल का हिसाब नहीं दे सकूं। कौन इमाम आजम जो रमजान शरीफ में 61 कुरान खत्म करते हैं, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में? कौन इमाम आजम जो 300 रकत नमाज हर रोज रात में अदा करते हैं? वो इमाम आजम अबू हनीफा। एक बार पड़ोस की लड़की कहती है, बाबा वो जो दरख्त हमारे पड़ोस में था वो दिखता नहीं रात को। कहा बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम जो थे, जो पूरी रात खड़े रहकर इबादत किया करते थे। अब उनका विसाल हो गया है। ये हाल था, ये हाल। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कह रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा। नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। तब तब आंसू गिरते, तब तब आंसू गिरते हैं। मस्जिद का मुअज्जिन आता है, चराग बंद करने के लिए आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है। एक बार जब उसके पैर की आवाज सुनी तो जल्दी से आंसू पोंछकर पलट कर कहते हैं, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? मौसिर कहता, हुजूर बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई, फजर। आप पूरी रात रोते रहे अल्लाह के खौफ से, फजर हो गई। तब इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? क्या तूने मुझे रोते हुए देख? उसने कहा हाँ, पूरी रात रोते रहे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं हयात रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तूने किसी को कह दिया मेरी जिंदगी में, तो कहीं कयामत में ये ना कह दिया जाए कि नोमान हमारे लिए रोता था और दूसरों को सुबह बता भी दिया करता था। ये लोग थे अल्लाह वाले, आखिरत की फिक्र ये थी, सब कुछ करके फिक्र ये थी। आज हम कुछ नहीं है, कोई नेकी नहीं, कोई अमल नहीं, फिर भी हम बेफिक्र है। आओ सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से बदलो। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को की तौबा को कबूल करता है। 80-80 साल तक कोई गुनाह करे, बल्कि 400-400 साल तक कोई गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। खुदा को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। गुनाह के अंदर लज्जत तो है, गुनाह के अंदर लज्जत तो है, मगर इज्जत नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, जहाँ गुनाह है वहाँ फना है। गुनाह तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। गुनाह की वजह से रोजी तंग होती है, गुनाह की वजह से उम्र कम होती है, गुनाह की वजह से चेहरे की खूबसूरती जाती है, गुनाह की वजह से मौलिक बीमारियां आती है, गुनाह की वजह से जिल्लत आती है, गुनाह की वजह से वहशत आती है, गुनाह की वजह से घबराहट होती है, गुनाह की वजह से जो है इंसान जो है बेचैन बेचैन रहने लगता है। गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। आओ आज से अहद करो, इंशाअल्लाह जब कल से सुबह होगी तो कल की सुबह एक नई सुबह होगी। आज हम तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। आज से पहले जो किया खुदा को मना ले, खुदा को राजी कर ले। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे पाक कर देता हूँ जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुए। आओ सिद्ध दिल से तौबा करो, बदलो और बदल के जाओ और अहद करो। कल तक नमाज छूटी थी, अब नमाज छूटने नहीं देंगे। कल तक झूठ बोलते थे, अब झूठ से बचेंगे। कल तक गीबत करते थे, गीबत से बचेंगे। कल तक के माँ बाप का दिल दुखाया, उससे बचेंगे, बल्कि माफी मांग लेंगे। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। मुसलमानों अच्छे इंसान बनो, जमीन पे रहोगे तो भी सुकून से रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी सुकून से रहोगे। याद रखना, अगर पड़ोसी सताता है तो सताने के बदले उसको न सताया करो। हजरत महबूब इलाही का एक मुरीद आकर कहता है, हजरत मेरा पड़ोसी बहुत सताता है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, सताता है? कहा हुजूर बहुत तकलीफ पहुंचाता है। क्या करता है बेटा? तो कहा हुजूर बहुत अजियत देता है। फरमाया बेटा कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। मुसलमान जमीन पे कांटे बिछाने नहीं आया बल्कि कांटों को हटाने के लिए आया है। मेरे भाइयों, नफरत के मुकाबले में नफरतें आम मत करो वरना दुनिया नफरतों से भर जाएगी। नफरत के मुकाबले में मोहब्बतों को आम करो। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो जीत हमेशा मोहब्बतों की होती है। तुम्हें मालूम है पत्थर मारने वाले गुलाम बन गए, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। क्या तुम्हें नहीं पता मक्के में मेरे नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे, जिन्होंने पत्थर मारे हुजूर ने दुआ दी, पत्थर मारने वाले गुलाम बन करके आ गए, लेकिन आका की आकायत कायम रही। इसलिए दुआ देने वाला गुलाम नहीं बनता, पत्थर मारने वाले गुलाम बना करते हैं। इसलिए पत्थरों के मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से न दो बल्कि पत्थरों का जवाब दुआओं से दो। अपनी
अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करो, इतना हिल्म पैदा करो। मैं आखिरी बात अर्ज करने चला था, एक मर्तबा हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैं एक बुजुर्ग के पास गया और मैं बहुत पढ़ लिख चुका था। मैंने बुजुर्ग से कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दे। ये नसीहत सब याद रखें। बुजुर्ग ने से कहा मैंने हजरत कोई नसीहत कर दे। तो हजरत शेख सादी को उस बुजुर्ग ने क्या नसीहत फरमाई? फरमाया मिट्टी से बने होना, मिट्टी से बने होना तो मिट्टी का ज़र्फ अपने अंदर पैदा करो। मतलब क्या? मिट्टी पे कोई पैर रखे, मिट्टी एहतिजाज नहीं करती। मिट्टी पे कोई पेशाब करे, मिट्टी एहतिजाज नहीं करती। मिट्टी पे कोई पाखाना करे, मिट्टी एहतिजाज नहीं करती। मिट्टी को कोई खोद के पहिया भरे, मिट्टी एहतिजाज नहीं करती। मिट्टी के साथ सब कुछ कर दिया जाए, एहतिजाज नहीं करती। एहतिजाज करना तो दूर की बात है, जब मर के आता है तो अपने सीने के अंदर सीना खोल के जगह भी देती है। तो वो बुजुर्ग ने कहा बेटा मिट्टी से बने हो तो मिट्टी की सिफत अपने अंदर पैदा करो, वरना अपना सारा इल्म एक जगह धर के रख दो, कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपसे भी कहता हूं मिट्टी से बने हो। मिट्टी का कोई गाली दे समझ जाओ ठीक है, जा तुझे माफ किया अल्लाह के लिए, तुझे माफ किया अल्लाह के लिए। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, जा माफ किया अल्लाह के लिए। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी ये किया। अपनी जात के लिए किसी से कोई बदला नहीं लिया, जात के लिए बदला न लो। जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, कुत्तों का काम। इसलिए डिसिप्लिन सीखो, लड़ाई झगड़े से बचो, हो लपाट से बचो। अब चूंकि जलसा खत्म होगा, थोड़ा ध्यान दें। आपकी मोहब्बतों की बड़ी कद्र है। अब आप सुन चुके कि एक नहीं कई औलिया होंगे। आप लोग फिर जैसे आए थे वैसे ही धींगा मस्ती करोगे तो हम समझेंगे कि 1.25 घंटा चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। और अगर आप लोग डिसिप्लिन से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए घरों की तरफ जाओगे तो हम समझेंगे कि जो बंदा अब अमल का जज्बा आदमी के अंदर पैदा हो गया है, अगर ऐसा कर रहा है तो उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। और आपको हमारे उलमा ने अगर डांटा हो तो इनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी वजह से इन्होंने आपको डांटा, आप हज़रात ने ऐसा किया। वैसे भी मेरे पैर का छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। लोग तकरीबन ये ऑपरेशन में 8 दिन में पैर अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन हर दिन कोई ना कोई उसको भीड़ में पैर मार ही दे रहा है। तो मार देता है तो वो ज़ख्म फिर हरा होता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत कायम करो, नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो। कितने लोग हैं जो आज से ये इरादा कर रहे हैं, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ, फरिश्तों को भी हम गवाह बना लें, आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उठा के रखें, बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है माशाल्लाह। ये बुजुर्ग उलमाए किराम भी गवाह हैं, फरिश्ते भी गवाह। उठा के रखो, मैं भी बरकत के लिए उठाता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तेरी मोहब्बत और तेरे हबीब की मोहब्बत में इन्होंने वादे के लिए हाथ उठाया। मौला हाथ उठाना हमारा काम है, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है। मौला हम सबको और हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। बोलो आज से अहद करते हैं इंशाल्लाह। और जब मस्जिद जाओगे तो अपने इमामों की खिदमत करोगे इंशाल्लाह, उनकी इज्जत करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। मेरे साथ और मेरे बाद एक खूबसूरत खिताब आपको सुनना था। हमारे कायद, हमारे अमीर हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला का खिताब सुनना था, लेकिन हज़रत की अहलिया की तबीयत की कुछ अलालत की वजह से हज़रत आज तशरीफ़ न ला सके। दुआ करें अल्लाह हज़रत को भी शिफा अता फरमाए, उनकी अहलिया को भी शिफा अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। भाई दस्तार बंदी होगी अभी, दस्तार देख 3 हाफिज जो वो उनकी दस्तार हो रही है, वो भी जरा देख लें आप, इनकी हौसला अफजाई करें। बोल तो दिया भाई, दस्तार हो रही है, दस्तार। अभी जिस चीज को बताया था यार, आप लोग फिर वही काम कर रहे हो। अभी वादा करके जो है बैठे हो, आप लोग फिर वही काम करने लगे हो। कितनी गलत बात है यार। आप लोग पीछे हट जाओ, अभी जब जाएंगे तब मुसाफा कर लेना, अगर हजरत इजाजत देंगे तब। और उलमा इकराम से भी गुजारिश है पीछे हट जाए थोड़े थोड़े यार।